नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको एक बार फिर नमस्कार और वंदे मातरम। मेरा नाम है आरकेबी, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप जी के साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रदीप जी, आज बहुत जबरदस्त दिन है। आज दिन है फातिमा शेख की एनिवर्सरी का। जी हाँ, लेकिन दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि लोग उनको भूल चुके हैं या याद ही नहीं किया। भूले तो बुलाया तो उसको जाता है जिसको याद किया जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेटली फातिमा शेख हैज बीन फॉरगॉटन। Jyotiba and Savitribai Phule are still remembered as the greatest educationists this country has ever seen. The people who went out of their way to educate Dalit and other what were then considered to be lower caste girls. But Fatima Sheikh, who gave a house to Savitribai Phule, who gave everything of hers to the Phules, she has been forgotten. And that, I think, is sad. That is really and truly sad. याद रखें, फातिमा शेख वो शख्सियत हैं जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के पास कुछ नहीं था, उनके पास घर तक नहीं था, फातिमा शेख और उनके भाई ने अपना घर उनको दिया, वहां पर फिर स्कूल शुरू हुआ और उसके बाद फातिमा शेख जी ने खुद ने पढ़ाना शुरू किया दलित बच्चों को, मुसलमान बच्चियों को। And she was attacked from both sides, Pradeep ji, both sides. Exactly. Both the Hindus and the Muslims both attacked her. Bilkul. We should remember her today. We should remember. And you say, the English poet who said, full many a flower born to bloom unseen and waste its fragrance in the desert air. That's exactly what. These have been great contributors to the nation, great contributors to the caste of creating a classless society, helping the poor and downtrodden, sacrifice beyond the call of duty. Nobody thought that, I mean, they never did it for fame. But then it's not upon the country also to forget the contributions of such people. Phule, Shahu, Ambedkar have been great to do social justice to this country. And they are remembered. About social justice to this nation. They are remembered, yes. They are remembered, but there are many, hundreds of them along with them, who are hand to hand, shoulder to shoulder with them, to see that the poor and downtrodden are taken care, Absolutely. to make a classless society, to see and she also established casteless society. And you know what? Savitribai Phule actually established 2 schools in Bombay. Bilkul, sir. Then Bombay, now Mumbai. And she taught, Fatima Sheikh taught in all the schools established by Savitribai Phule. Can we have that picture on full frame, please? Because I want everybody to see it. Everybody sees us every day. Can we have that, please? Can we have that picture on full frame, please? Can we have Fatima Sheikh's picture on full frame, please? The contribution, sir. I mean, yes, that's really wonderful. Like you, just look at that. Look at that. Look at that. That is Savitribai Phule on the right of the screen. On the left is Fatima Sheikh. Now, I tell you what. Do you know something? Even historians have been very unkind. They were very unkind even to Savitribai Phule and Jyotiba Phule. By the way, it's only later on, after agitation in Maharashtra and elsewhere, that Jyotiba Phule and Savitribai Phule's contribution to the upliftment of the poor, to the upliftment of the downtrodden, to social reform, to being revolutionaries in social reform was actually acknowledged. In that, फातिमा शेख जी की जो एनिवर्सरी है वो लोग भूल ही गए। और प्रदीप जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि फातिमा शेख जी को लेकर के मतलब ताज्जुब की बात यह है, इट्स अ वेरी आयरॉनिकल कि वो 9 जनवरी को पैदा हुई या 10 जनवरी को पैदा हुई या 8 को पैदा हुई, अब तक उसके ऊपर भी डिबेट है, किसी को ये भी मालूम नहीं है। सर, बहुत सारे along with so many, what you call Shahu, Phule, Ambedkar, Chhatrapati Shivaji Maharaj, revered in Maharashtra. Contributions of them, now it is now that people are recognizing their contribution, recognizing their contributions. They are sacrifices to the nation. And at that particular time, when we were talking about, when there was a caste system at its ugliest worst. That's right. And at that particular time, for a family to take a stand, for Savitribai Phule to take a stand, for Fatima Sheikh, especially coming from Muslim community, and forcing Muslim families all around to send their girls to a school, and also to see that you're teaching the poor and downtrodden in a system that is totally caste-based. Yes. Absolutely. And look, at that particular time,
And at that particular time, the resistance of the people, majority of the people didn't want the poor and downtrodden from lower background and lower caste to really do something in education, move up the education line, learn something for themselves. And anybody who tried to do this faced stiff resistance, absolutely violent resistance. And that is the time these people have contributed selflessly great sacrifices for the nation to make a classless and casteless society. We are talking about 1845, 1846, 1847, 1848, yes, yes. 1851. और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद क्या हुआ? प्रॉब्लम ये होगी कि 1857 का गदर हो गया. Exactly. 1857 के गदर के बाद काफी स्कूल्स जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के थे और फातिमा शेख भी उसमें थी, उनको कंट्रीब्यूशन आनी बंद हो गई अंग्रेजों से. Yes. बिकॉज ऑफ दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Yes. लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी. देख लीजिए प्रदीप जी, सुनने वाली बात है. उस वक्त आज की तारीख में अगर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन आनी बंद हो जाती है, मतलब पैसे आने बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है. एग्जैक्टली. या फिर आप पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी फीस ला देते हैं, इतनी बड़ी फीस ला देते हैं कि वो बेचारे आत्महत्या की कगार पर खड़े हो जाते हैं. लेकिन इनको देखिए, कैन वी हैव दैट ऑन फुल फ्रेम अगेन प्लीज? I would like people to see the face of Fatima Sheikh. This is Fatima Sheikh. She is the woman behind the Phules. अगर फातिमा शेख जी नहीं होती तो सावित्रीबाई फुले को ना जाने और क्या क्या करना पड़ता अपना स्कूल खोलने के लिए. फातिमा शेख उनके साथ थी और दोनों ने मिलकर के, of course ज्योतिबा फुले was the inspiration and remained there all throughout. Fatima Sheikh is the one person we need to remember, the first Muslim educator of India, the one woman who ignored everything and anything that all these people could throw at her, her own community, the Hindu community, the Brahmins, anybody, and of course the Sayyids. She refused absolutely to listen to anyone. She and her brother both, Mian Usman Sheikh or Fatima Sheikh. भाई बहन ने जो कंट्रीब्यूशन करी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के विद्यारोपण के लिए, जिस प्रकार एकेडमिक्स को उन्होंने स्प्रेड किया, जिस प्रकार विद्या की रोशनी जो है, जो स्टडीज की जो रोशनी है, तालीम की जो रोशनी है, फातिमा शेख ने हर जगह पर जहां पर वो कर सकती थी, जिस तरीके से फैलाई है, वो काबिल तारीफ है. इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. आई होप बाय नेक्स्ट ईयर people remember her properly. I hope even the government of Maharashtra remembers her properly. I hope the government of India does something for her. By the way, the only thing that was done for her was last year. On January 9, 2022, that Google came out with a Google Doodle of Fatima Sheikh. And I think that's wonderful. For Google to do it and for our people not to do it is, I think, rather sad. It is really and truly sad. This lady needs to be remembered. Our salute to Fatima Sheikh, the first woman Muslim educator in India. याद रखें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद 1879 में बनी, जहां तक मेरा ख्याल है. सर सैयद अहमद खान को हर एक को याद रखता है. फातिमा शेख को हम आपको याद दिलवा रहे हैं कि you actually need to have a group that cultivates. We could start, because हर व्यक्ति का एक group hota hai. I mean, a person sacrifices and after his death people form a group. Yes. And then they talk about the great things that they have achieved, and especially when you describe at that particular time full or riddled with casteism, class conflict, you got oppression, suppression, you got inequality, inequity, disdain, discord, disharmony, everything happening. And at that particular time, a female, Savitribai Phule, Fatima Sheikh, coming together, Hindu and Muslim, and doing wonderful job. Yes. Not for fame, but to fulfill the system or overturn the system or take the nation to greater heights and enlighten children, enlighten poor and downtrodden, enlighten them, empower them, educate them, empower them. That is my India. ये है हिंदुस्तान साहब, ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की शक्ल है. याद रख लीजिए, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ये हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये प्रदीप भाई का हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है. याद रख लीजिए. क्या ये आपका हिंदुस्तान नहीं है? अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर लिखें. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. नेशन नाउ के
YouTube के comment section में please आप लिखें. If you've liked this channel, if you've liked what you have seen up till now, please tap on that subscribe button. Subscribe button के ऊपर अगर आप जरा tap करें तो subscribe to this channel. And if you like or dislike whatever you've seen or heard, please do send in your comments. आप अपने comments भेजें. Even the abusive comments that you're getting. Yes, and I promise I'll read them all out. I shall read them all out over here, and so will Pradeep ji. We would like to hear from you, especially with regard to Fatima Sheikh. आपको क्या लगता नहीं है कि फातिमा शेख को कोई बहुत बड़ा ऑनर मिलना चाहिए? मुझे लगता है उनको एटलीस्ट मरणोपरांत पद्म भूषण देना चाहिए, पद्म विभूषण देना चाहिए, if not a Bharat Ratna. Her contribution as the first woman Muslim educator cannot be overemphasized. This is for you. What do you think the government of India should do to honor the memory of Fatima Sheikh, the woman behind Savitribai Phule? This is a question for you. Please do send in your replies. आप अपनी replies भेजें. Right, that was about Fatima Sheikh. Now, Pradeep ji, हमारी जो कैंपेन थी गोरेगांव पे, नया नगर गोरेगांव, आज तक वहां पर बिजली नहीं आई है. 40 बरस से बिजली नहीं आई है. बिजली को लेकर के आज वहां के लोगों ने हमारे फ्रेंड अजय विचारे जी के नेतृत्व में वहां पर अडानी जी के दफ्तर के सामने वहां पर आंदोलन किया. आंदोलन ये कहा कि भाई आप बिजली कब भेज रहे हैं, कब वहां पे मीटर लगा रहे हैं. You know that you can see our friend Mr. Vichare right over there. You can see that huge crowd over there. But I hope this problem gets resolved soon. Ji Pradeep ji. Sir, Satyagraha, the Gandhian protest, आज तक यही, it still works. This particular kind of dharna, this particular kind of a disciplined protest, a non-violent protest, that हमारे founding father महात्मा गांधी ने जो छोड़ के गए, आज भी ये रंग ला रहा है. Look at the way people have assembled. In modern day India, in a city like Mumbai, people are fighting to see that they get electricity. But there's only one thing I have to ask. There is very frankly speaking, we will have Mr. Vichare with us, and we're going to ask him that. Yes. After all, for 2.5 years उनकी सरकार थी, उस वक्त एनसीपी ने क्या किया? अभी तो खैर वो पॉलिटिकल आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. Very frankly, देर आए दुरुस्त है. I am not nitpicking, but what he has done is wonderful. बहुत जबरदस्त चीज करी है उन्होंने. इस वक्त विचारे जी हमारे साथ हैं. विचारे जी नमस्कार. नमस्कार. विचारे जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको आंदोलन के लिए. लोग आपके साथ आए. अजय विचारे जी, एनसीपी के अजय विचारे जी. अजय विचारे जी, तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या रिस्पांस मिला? उन्होंने सामने से क्या कहा कि अगले 40 साल के बाद लगाएंगे मीटर? बताएं. कैसा है राजू जी? जी कि आज हम लोग आंदोलन जो हमारा हुआ, उसके बाद हमारी जो कोर बॉडी है जी, वो अदानी के ऑफिसर्स के को मिलने के लिए हम लोग अदानी के गोरेगांव के ब्रांच में गए हैं जी. तो एज यूजुअल उन्होंने सिर्फ हमको घुमाने का काम किया. उन्होंने हमसे क्या कहा कि हम लोग अभी एक आने वाले 2-3 दिन में सर्वे करेंगे जी. अरे भाई, सर्वे तो इसके पहले भी हो गया जी. जब भी उनको मैं मिलने के लिए गया था, तभी उन्होंने मुझे बोला था कि ऑलरेडी लीगल टीम हमारी इस पे काम कर रही है जी. और फिर कुछ दिन के बाद मैंने उनको बोला कि अगर लीगल टीम काम कर रही है तो हमको बताओ क्या आपने हाईकोर्ट में अपील किया है, पीआईएल डाला है? अगर हाईकोर्ट में पीआईएल डाला है तो हमको बताओ, हम भी इंटरवीन करेंगे उसमें जी. तो बाद में अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बताया कि नहीं, हमने अभी तक पीआईएल नहीं डाला. मतलब यहाँ पे भी हमको फंसाया गया. नहीं तो जनहित याचिका डालने की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब वाई, क्यों? अभी उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग को परमिशन नहीं दे रहा है. जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी. हाँ, तो वन विभाग. हाँ, वन विभाग जी. तो मैंने बोला भाई आप इंडिविजुअल मीटर टेम्पररी बेस पे दो जी. जो बाकी जगह पे हो रहा है वही हम मांग रहे हैं. और जहाँ तक मुझे पता है कि ये स्लम डिक्लेयर है और वो जो दस्तावेज है वो भी हमारे पास है. तो अगर स्लम डिक्लेयर है तो पानी और बिजली देना चाहिए. करेक्ट. दैट इज योर राइट. हमारी यही मांग है. दैट इज योर राइट. प्रदीप जी, आज भी हमको सेटिस्फाई नहीं किया. आज के तारीख में विचारे जी, आप देखो 20 साल पहले करीबन 90s के आसपास, लेट 90s में यही हालत थी. एयरपोर्ट एरिया मुंबई में जितने भी पूरे एयरपोर्ट एरिया में, अभी जो अडानी के लैंड है, पहले वो एयरपोर्ट एरिया के लैंड थे, वहां पर बिजली नहीं था. एंड
संघर्ष, ये 20 साल पहले की बात कर, 20-30 nearly more than 20 years, they got electricity. Many places out in Colaba, जहां फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर उनको परमिशन है, वहां पर बीएसटी और अडानी के लाइट चल रहा है. तो आई डोंट नो व्हाट इज द हार्म. आपका संघर्ष जायज है, गांधीयन प्रोटेस्ट आप जो कर रहा है, साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, कि अभी तो लाइट दो. मुंबई जैसे शहर में, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट important cities across the globe, and some people in the mid suburbs of Mumbai are fighting for electricity. ये एक शर्मनाक चीज है. ये actually ये PIL जाने वाली बात है, PIL फाइल करने वाली बात है. Itself it derogates the entire concept of what democracy was we're talking about, giving the poor and downtrodden the basic fundamental facilities. उसके लिए आपको PIL के लिए जाना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है. ये बहुत गंभीर विषय है. लेकिन एक चीज बताएं विचारे जी, तकरीबन 2.5 साल से आपकी सरकार थी, एमबीए की सरकार. उस वक्त क्या हुआ सर? उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त भी आप वहीं थे, ये सभी लोग वहीं थे. तकरीबन यहाँ पर 20 के 25,000 लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं. वो आप बताएं कि उस वक्त क्यों कुछ नहीं हो पाया, जरा बताएं. देखो ऐसा है ना, अच्छा सवाल है. ये पिछले 20-25 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है जी. लेकिन मेरे पास ये लोग अभी हार्डली 2 से 3 महीने पहले आए जी. तो जब भी वो मेरे पास आए तभी मैंने पहला ये जो CRZ का जो इनका इशू है उसका सब पेपर्स निकाला जी. और फिर मैं मेरे लीगल टीम से इनका ओपिनियन लिया जी. तो ओपिनियन में ये पता चला कि इनको अगर स्लम डिक्लेयर है तो लाइट और पानी ये देना अनिवार्य है, दुरुस्त हक है जी. पिछले 20-25 साल से उनको ये मिला नहीं है जी. उसके बाद फिर आपके माध्यम से हमने वहां पे एक मीडिया का कैंपेन रखा जी. आज आंदोलन किया है और वो अदानी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में आज हम लोग जाके आए जी. हमें उम्मीद थी कि वहां से कुछ पॉजिटिव हमको रिप्लाई मिलेगा जी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन बहुत पॉजिटिव रिप्लाई मिला है. आप ऐसा कैसे कह रहे हैं प्रदीप जी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो रिप्लाई अडानी ने दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तो उम्मीद जा गई है. उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन के बाद वहां पे सर्वे करने आएंगे. अरे बड़ी अच्छी बात है भाई, करो जो कार्रवाई करनी है करो, लेकिन बिजली दो. सीधी सादी बात है. अरे सर्वे करना, एक सर्वे क्या 20 सर्वे करो, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा ये कहना है अजय बेचारे जी, अब आप उनके पीछे लगे रहिए, अब छोड़िएगा नहीं. उन्होंने आपको कहा है ना कि 2 या 3 दिन में वो सर्वे करेंगे, अब उनको छोड़िएगा नहीं. उनको बोलो भाई कब आ रहे हो सर्वे करने के लिए, हम आपके साथ चलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि ये तो फंस गए. अब आपको उन्होंने कह दिया कि सर्वे करेंगे, इसका मतलब ये लोग फंस गए वहां पे, अब इनको देना ही पड़ेगा. लेकिन प्रदीप जी, जो बात अभी अभी अजय बेचारे जी कह रहे थे, भाई ठीक है, हमारा रोल तो है एक मीडिया का, हमारा रोल तो है सारे उलझनों को सामने लाने का, हमारी तरफ से जो कुछ हो पाएगा उसका समाधान करने का, बीएमसी कमिश्नर साहब के सामने उनके संज्ञान में लाने का. लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि एक बार आपने किसी जगह को स्लम डिक्लेयर कर दिया, स्लम में एक बार डिक्लेयर हो गया, उसके बाद बिजली और पानी देना अनिवार्य है. दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक हक बनता है. प्रदीप जी, exactly the fundamental right of the people and the fundamental duty of the state and these associations and organizations and the private sector organizations. अडानी जी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया जिसमें इसका बोला, मैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप लेवल पे डेवलप करना चाहता हूं. that's what he said. मैं गरीब से गरीब लोगों के अपलिफ्टमेंट में बिलीव करता हूं. मैं एक फैमिली वैल्यूज, फैमिली सिस्टम and the entire concept of a unified India, उसमें बिलीव करता हूं. तो man who believes in such great ideologies, बार बार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हमारे कैंपेन से ये हो गया अजय विचारे जी और हम लोग बजाज साहब आपके साथ जुड़ने के बाद कंबाइंड कैंपेन saw the municipal authorities first time entering the area after ages, first time cleanliness taking place after ages, first time health camps being launched after ages, where most of the officers say that they never knew existence of any road that connects to NAGAR. I mean, that is the state कि आज ये कैंपेन के माध्यम से 50% at least successful हम लोग रहे. The next 50% is when the electricity comes. And वजह विचारे जी, आप सही मार्ग पर चल रहे हो. अब थोड़ी वक्त है बस, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर आएगा जब तक, because some people are already electrified. Some areas within Nagar is already electrified. 28 है वहां पे. और ये corruption जब is a only stumbling block. अजय विचारे जी, मुझे लगता है, बजाज साहब को लगता है, नेशन नाउ को लगता है, एक करप्शन का एक दीवार आपके बीच में खड़ा है.
जी, उस करप्शन के दीवार को हटाना पड़ेगा। अजय विचारे जी, इसका ये जो भ्रष्टाचार है, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे, वो जरा बताइए। देखो ऐसा है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे पीआईएल डालने वाले हाईकोर्ट में वेरी सून जी, बराबर है। तो अगर पीआईएल डाल रहे हैं तो हाईकोर्ट से हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। और जब हर घर में बिजली आएगी तो ये वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जी, जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर मीटर लगाना हो तो 35 हजार पहले हमको जमा करो। 35,000 रुपए जहाँ अभी आप देखोगे लीगली 2500 रुपया भरना पड़ रहा है, वो भी पहले किस्त में वो डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे पैसे का कौन सा आ गया बीच में 30 to 35,000। दुरुस्त बात है। तो ये सब चल रहा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा, ये चलते चलते ये आपसे सवाल पूछना था, बहुत एक बार फिर आपको साधुवाद, कंग्रेचुलेशन टू यू, बहुत अच्छा काम किया आपने। आपने इतना बड़ा आंदोलन लीड किया, आप ऐसे ही करते रहें, संघर्ष करते रहें, मुझे पूरी उम्मीद है कि मीटर वहां पे लग जाएंगे। ये जरा बताएं सर कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, आज की स्थिति में पूछ रहा हूं। आज सोमवार है, 9 तारीख है, क्या वहां पर जो कचरा उठाया गया था अभी भी वहां पर मौजूद है या और भी उठाना है? हेल्थ कैंप की जो बात हुई थी नया नगर के इन सिटू, मतलब उसी जगह पर, उसका क्या हुआ, वो जरा बताएं सर। राजीव जी, कचरा उठाया है लेकिन जो हिसाब से उठाना चाहिए वो हिसाब से आज भी उठाया नहीं गया है जी। और जहाँ तक हेल्थ कैंप का इश्यू है, हेल्थ कैंप तो सिर्फ जुमला ही मिलते आ रहा है जी, मतलब वो अभी तक वहाँ पे हेल्थ कैंप लगा ही नहीं। वो सिर्फ गणेश मंदिर में लगा है, बस वो सिर्फ गणेश मंदिर में लगा है, वो जो मैडम पिल्ले जो हैं उनके एरिया में। जी, राइट। सो इन इफेक्ट प्रदीप जी, these people have been left to their own devices. एक तरीके से there's some moment only you need to balance them, एक confidence administration, at least प्रशासन at least उस राह पे चलने लगा जहां पर उनको लगा कि नया नगर यहाँ पर है और नया नगर में कुछ करना है। जी, विचारे जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि कचरा बहुत कम साफ हो गया, मगर एटलीस्ट शुरू तो हो गया कचरा साफ उठाना, पहली बार हुआ। ये आपको इसका श्रेय भी जाता है, but at the same time a more organized approach on the BMC and all the agencies involved is expected, and we hope along with विचारे जी जो elected representatives है वो भी कुछ काम करने लगे, because आपको वोट नहीं मिला करके आप कोई एक वोट मिला है। प्रॉब्लम क्या है प्रदीप जी? प्रदीप जी, प्रॉब्लम क्या है कि वोट मिला है, इन्हीं लोगों का वोट इनको मिला है। इन लोगों को अभी लग रहा है कि शायद अभी नहीं मिलेगा, इसलिए शायद काम नहीं कर रहे शायद। बेचारे जी आप बताएं, ये लोग आपके पास तभी आए हैं जब इनकी उम्मीद जो है इनके इलेक्टेड कॉर्पोरेटर और एमएलए के साथ जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गई, इसलिए आपके पास दौड़ के आए। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब इनको ये लग रहा है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद इस बार हमें वोट नहीं मिलेगा, मे बी वी वोंट गेट वोट्स दिस टाइम, सो मे बी दे हैव लेफ्ट देम टू देयर ओन डिवाइसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो। जनाब बताएं। बराबर है, बताएं विचारे जी। यस मिस्टर विचारे। कैसा है जी, बोलिए। कैसा है कि आपने देखा ही होगा जो हमने मेडिकल कैंप कहाँ रखा था, जो नया नगर के लोगों के लिए रखा था। क्या नया नगर के लोग वोटर नहीं है? क्या उनके पास आधार कार्ड नहीं है? जी, लेकिन वो क्या लगता है मेरे माध्यम से। जी, आज वही डर, आज आंदोलन में आपने सबने देखा रहेगा, आपके पास वो फोटो जी, वही चल रही है, इस वक्त चल रही है, में लोग उतर गए थे। जी, दुरुस्त बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली है। आखिरी सवाल आपसे ये है विचारे जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी, विचारे जी, वहां पर ये हेल्थ कैंप, उसी जगह पर हेल्थ कैंप लगाने से जरा डरते हैं इन्होंने, इसलिए गणेश मंदिर में लगाया। जो बराबर है, पोलिंग बूथ होता है वो कहां पर होता है सर? पोलिंग बूथ भी उधर ही बाजू में ही होता है। वहीं पर होता है नया नगर में ही कि आगे जाके होता है? उधर ही पड़ोस में, बाजू में ही है। बाजू में कहां? जहां गणेश मंदिर है वहां पर या नया नगर के भीतर? नहीं, इनका जो वोटिंग का जो है ना वो बीएमसी स्कूल में होता है। बीएमसी स्कूल में होता है। जी, हाँ, ओके, राइट। बट लेकिन यहां पर दूसरी बात ये सामने उत्पन्न होती है कि सबके पास प्रदीप जी वोटर आईडी कार्ड है, बिल्कुल है, पैन कार्ड है, यस, सबके पास आधार कार्ड है, है, और चुनाव के दौरान यस
हर एक को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे सड़क भी है, एक्सेस रोड भी है, लोग वहां पर जाते हैं कैंपेन करने के लिए, वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। बिजली देने के लिए कोई नहीं पहुंचता है, बिजली देने के लिए सिर्फ अजय विचारे जी पहुंचे हम लोगों के साथ। विचारे जी, आखिर में अब आगे क्या, आगे अब और क्या करने वाले हैं वो बताएं। देखो, जंग तो जारी रही है, जब तक नया नगर के रहवासी को बिजली नहीं मिलेगा हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। अभी हमारा आखिरी जो होप है वो हाई कोर्ट है। जी तो हाई कोर्ट में अभी हम लोग पीएल डालने की पूरी तैयारी में है और उम्मीद है वहां से हमको न्याय मिलेगा। थैंक यू सो मच अजय विचारे जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अजय विचारे जी बड़ा संघर्ष करते हुए, जबरदस्त तरीके से काम करते हुए, जबरदस्त तरीके से नेतृत्व करते हुए इस आंदोलन का, एक बार फिर उनको साधुवाद और कंग्रेचुलेशंस। प्लीज कीप अप द गुड वर्क एंड वी आर विद यू। हम लोग भी वहां पर वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस वहां पर आएंगे, ये देखने के लिए कि वहां पर आगे अब हेल्थ कैंप लग रहा है कि नहीं लग रहा, और उसके बाद वहां पर बिजली के मीटर हर घर में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। Pradeep ji, this is really terrible. This is really terrible. What's going on is terrible. Going through the difficult moments, fighting, surviving. Yeah, but what I'm saying is, what I'm saying is, what my view is, why do we need to go through all this at all? For what reason? I mean, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तो right है, ये this should be done automatically. Correct. Why does anybody need to struggle for it? इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता क्या है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। Sir, number one, the biggest impediment to entire thing where a normal work process flow takes place is the block of corruption. Right. Now, the way senior officers, bureaucrats saying that we never knew the existence of NAGAR, we never knew that there were road connectivity. There's an access road that one could actually get there. You're talking about, in modern India, you're talking about a place in Mumbai which our officers don't know there's a road connectivity. So how do the people go? I mean, there is no will on the part of that particular administration to see that justice, the fundamental duties of the states are performed in there and the people get their fundamental rights, which is light, water, electricity, housing. These are fundamental obligations of a government. And I mean, you need now you highlighted it. We have highlighted it. We have highlighted this, and now probably administration will be forced to push in. And the corruption that involved various departments, including lower level officers of Adani, who are acting as a stumbling block in order to gain some corrupt gains out of this entire exercise. There's a hell of a lot of money involved over there. Hell of a money. You've got about so as long as this. Pradeep ji, 4,700 husbands, 4,700 husbands. Yes, sir. हर एक से आप 1,000 रुपए ले रहे हैं महीने का. Exactly. 1,000 रुपए. Now you multiply 4,700 by 1,000. कितना हो गया भाई? Only corruption is stopping the normal government flow of work. And so you're looking at somewhere around 5 crores a year. 4 करोड़ 80 लाख रुपए साल के हो गए. 4 करोड़ 80 लाख रुपए साल के जिस पूरे गैंग को मिल रहे हैं, why should it give it up? सीधी सादी बात है. तो वो कोई ना कोई रोड़ा अटकाएगा ही. There will be stumbling blocks all over the place. But what I would suggest to my dear friend and most respected bureaucrat in Mumbai, Mr. Iqbal Singh Chahal, what I would suggest to the Honorable Chief Secretary of Maharashtra, what I would suggest to the Forest Department and my dear friend, the Minister for Forests, our friend Mr. Mungativar, and the people involved with Mr. Adani. Sir, please do justice here. They need you to be fair. They need you to do justice. मुंबई शहर में 4,700 या 4,300 घरों में बिजली का ना होना हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है. इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती. 21वीं सदी में 2023 में ऐसा होना, I think it's terrible. Very, very frankly speaking. Sir, I think a lot of blame should go to the local elected representatives also. Now, you talk about any minister or the chief minister or deputy CM. You need to have the local elected authority to go and highlight the cause to the concerned department and the minister involved. Then things will happen. And it will be the most easiest thing for a local MLA or local MP to have interdepartmental meetings where forest department comes in, where electricity department, where the bureaucrats, BMC is involved, or collector's office involved. There have been occasions, multiple occasions, where all multi-agencies have been summoned at MP level, MLA level, and the minister level
to see And that things people have been get solved. justice and have been solved. जैसे अभी आपने एग्जांपल दी एयरपोर्ट लैंड की। Yes. अरे भाई एयरपोर्ट लैंड पर जितने लोग थे पहले उनको बिजली नहीं मिलती थी, उसके बाद एक निर्णय लिया गया, सब लोगों को साथ में बिठाया गया और ये कहा गया भाई अपनी अपनी ऑब्जेक्शन दीजिए। Exactly. And all those objections were overturned. Nobody had to go to court. Nobody had to file a PIL. मेरा ये कहना है कि अजय विचारे जी को यहाँ पर जनहित याचिका फाइल करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाए? आखिरकार ये इनका हक बनता है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं लोग वहां पे। अरे भाई पाकिस्तान से तो नहीं आए ना, टिम्बकटू से तो नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं आए हैं, अरे श्रीलंकन तो नहीं है। आज की तारीख में जितने रोहिंग्या के जो यहां पर आ गए हैं उनको भी आप बिजली और पानी दे रहे हैं, तो अपने लोगों को क्यों नहीं दे रहे? ना एनीवे, we will have Mr. Rajesh Sharma with us very shortly. He's launched a new campaign for this against the sale of the ESIC hospital. What is going on? Everything is being sold. The ESIC hospital needs to be revamped, not sold. And that I think it deserves a discussion. It deserves a proper discussion before you just take a decision. Sell it off. Just sell off everything. I think we've got Mr. Rajesh Sharma with us. Our old friend Mr. Rajesh Sharma of the Congress Party. Rajesh Sharma जी नमस्कार। नमस्कार। राजेश शर्मा जी बताएं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने बताया कि किस प्रकार ESIC हॉस्पिटल जो है अंधेरी ईस्ट में उसकी सेल होने की बातचीत चल रही है या उसकी सेल हो चुकी है, उसको बेचने में आपने कहा कि ये बहुत बड़ा कोई स्कैम है, उसके बारे में जरा बताइए। प्रदीप जी और मैं दोनों इस वक्त स्टूडियो में हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये स्कैम कैसे है। सर बताएं। ऐसा है कि ये हॉस्पिटल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, जबरदस्त आ रही है, बोलिए। ये जो हॉस्पिटल है, कामगारों 8 लाख कामगार इंश्योर्ड है जी, और उन कामगारों के इलाज के लिए VIP है, मतलब कि 2 पाई भी खर्चा नहीं होता, पूरा 10 लाख हो 15 लाख हो सबके सब खर्चे गवर्नमेंट करती है जी। 2018 में दिसंबर 2018 में आग लगी और उसके बाद आज तक खुला नहीं जी। और 250 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन और 50 करोड़ रुपया इक्विपमेंट, ऐसे 300 करोड़ रुपया दिए, जबकि साल का करीब 4-5 हजार करोड़ रुपया आम गरीब कामगार के पगार से कटता है और गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी देगा जी। अभी एक मिनट राजेश जी, इसको जरा दोबारा दोहराइए। 4,500 करोड़ रुपया सालाना एम्प्लॉइज की तनख्वाह से कट के सरकार को जाता है, ऐसा आपने कहा। और जहां तक ESEC हॉस्पिटल जो है, ESIC हॉस्पिटल जो है एम्प्लॉइज के लिए, उसको अभी बेचने की इसलिए नौबत आ गई है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सर नहीं, अभी ये तो मुझे नहीं पता है, कुछ भ्रष्टाचार भी इसका प्रमुख कारण होगा जी, जो अभी हमको वहां के कामगारों ने जो बताया है जी कि ये हॉस्पिटल अडानी को जा सकता है, इसके लिए आप विरोध करिए, जैसे आपने चिनाई कॉलेज के लिए क्या, वैसे इसके लिए आप कुछ करिए जी, और अगर करेंगे तो ये हॉस्पिटल चले जाएगा जी। डाउट क्यों आ रहा है कि हॉस्पिटल में 750 एम्प्लॉय थे, 250 डॉक्टर थे, सबका तबादला कर दिया गया, कोल्हापुर, नासिक, पुणे और मुंबई, कांदीवली। अभी यहाँ का कामगार जो है MIDC, मरोल, चांदीवली, साकीनाका, सब इस पे डिपेंड थे और अब सबको कांदीवली जाना मतलब कोई जा ही नहीं सकता। तुरंत अगर ये अडानी हॉस्पिटल बन गया तो कोई कामगार इसमें जा पाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए? आप बताइए मुझे। इसके लिए हमने इसका विरोध किया है और ये जो जमीन है 12 एकड़ है, 12 एकड़ यानी 5 लाख फुट, 5 लाख फुट 5 FSI हॉस्पिटल 25 लाख एंड 25 लाख इंटू 20,000 जो वहां का रेट है, मतलब 5,000 करोड़ रुपए का। और दुख की बात यह है कि इसमें आज के तारीख में खाली इनको 10 करोड़ रुपया खर्चा करना होगा, कलर और ये चालू कर सकते हैं। तो ये अपनी सरकार की जो मशीनरी है क्या कर रही है, ये हमारा प्रश्न है। That's a very major thing. No, Pradeep ji, that's a very major point that Rajesh Sharma ji has raised. Yes. You only require somewhere around 10 or 12 crores to revamp the hospital. Yes. You are already collecting so much of money from the employees. 300 करोड़, right? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया है, 300 करोड़ रुपया। और कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए खर्चा किया है और अभी तक हॉस्पिटल अभी तक शुरू नहीं हुआ है वापस, आफ्टर द फायर ऑफ 2018। एंड व्हाट आर यू डूइंग? आपने सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको अलग अलग जगह भेज दिया है ताकि लोगों को इलाज के लिए, किसी को कांदीवली जाना पड़ रहा है, किसी को कहीं और जाना पड़ रहा है। मतलब ये क्या मजाक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? प्रदीप जी आप लोगों को ग्रांटेड ले रहे हैं। सर ये जो ESI हॉस्पिटल, दो चीज देखना पड़ेगा कि वन थिंग इज व्हाई एवरीथिंग इज गोइंग टू अडानी। एज राजेश जी बोले कि हर चीज अडानी, धारावी रीडेवलपमेंट अडानी, एयरपोर्ट अडानी, जो चाहे अडानी को जाना है, एक चिंता का विषय है। एट द सेम टाइम
successive governments also, Rajesh ji, has failed to do some justice where ESIC hospital is concerned. आप भी बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उस एम्प्लॉइज से भी आप ताल्लुकात रखते हैं. They have been suffering for a long time. ये हॉस्पिटल बंद था, कभी चालू होता है, कभी बंद होता है, कभी फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है. आपको नहीं लगता सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैज फेल्ड द पीपल, द पुअर एंड डाउनट्रॉडन where ESI, बिकॉज ये हॉस्पिटल में कामगार वर्किंग क्लास जाते हैं. अब तक कोई भी सरकार इसको कुछ फुल प्रूफ तरीके से फुल प्रूफ बना नहीं पाए, फुल यूटिलाइजेशन के हिसाब से. राजेश जी. नहीं, इसमें ऐसा है कि हॉस्पिटल को वीआईपी हॉस्पिटल कहा जाता था. यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती थी, 10 लाख खर्चा सारा का सारा सरकार करता था. लेकिन ये अभी इन्होंने एक प्लान बनाया है किसी तरह से अडानी को देने का. इसके लिए हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहा है. नहीं तो आज 300 करोड़ रुपए आपने खर्चा करके हॉस्पिटल बंद क्यों रखा है, सभी स्टाफ का तबादला क्यों किया है. यानी इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट भी की मिली भगत है. स्टेट गवर्नमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है. उसने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया अभी तक. और ये जो प्रक्रिया सब चल रही है, ये प्रक्रिया वहां के कामगार और दुनिया के ध्यान में आ रहा है सारी बातें. इसके लिए इसमें कोई भी वो नहीं है. इसमें डायरेक्ट मेरा तो आरोप है कि बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है. और बेशरम की बात यह है कि 10 करोड़ खाली लगने वाला है और उसके बाद वो आदमी 5,000 करोड़ का मालिक बन जाएगा खाली 10 करोड़ रुपया खर्चा करके. जी दुरुस्त बात है. लेकिन यहाँ पर राजेश जी हमने मांग किया है, इसके लिए हमने मांग किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. एक तो अडानी ने अपना नाता तोड़ना चाहिए और दूसरा गवर्नमेंट ने अडानी को रिजेक्ट करना चाहिए. नंबर 3, यहाँ पे हॉस्पिटल तुरंत चालू करना चाहिए. लेकिन बड़े अचंभे की बात है, बड़े हैरानगी की बात है राजेश शर्मा जी, बहुत हैरानगी की बात है कि 250 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुके हैं. 300 करोड़ 250 plus 50 crores, 250 crores on the building and 50 crores on equipment. 300 करोड़ रुपए का आपने खर्चा कर दिया है और सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरे स्टाफ को आपने अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर दिया है, उनका तबादला कर दिया है. मतलब हॉस्पिटल अभी बंद है. 300 करोड़ का खर्चा करने के बाद हॉस्पिटल बंद है. द हॉस्पिटल इज स्टिल शट इवन आफ्टर यू स्पेंड 300 crores. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग राजेश शर्मा जी? आवाज नहीं आ रही है. राजेश शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? अभी आई आवाज. राजेश शर्मा जी, आप ये बताएं, 300 करोड़ खर्चा करने के बाद भी अस्पताल बंद पड़ा है? बिल्कुल आवाज. सर मुझे एक चीज राजेश जी आप कह रहे हैं वो सही लग रहा है, बिकॉज हम धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात हो रहा है हर सेक्टर में, हमने देखा कि एयर इंडिया का जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, इट वाज टेकन ओवर बाय टाटास एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जो एयरपोर्ट लैंड है वो अडानी ने टेक ओवर किया. तो हमने देखा कि धीरे धीरे जो एयर इंडिया के लोग जो अभी हमारे पास जो न्यूज आ रहे हैं, उनके मेडिकल फैसिलिटीज में कटौती हो गया, उनके जो रिटायर्ड बेनिफिट्स है उसमें कटौती हो गया, उनको जो फैसिलिटीज है फुल प्रूफ एक अच्छा फैसिलिटी जो एयर इंडिया के माध्यम से ओल्ड एयर इंडिया जो सरकारी एयर इंडिया प्रोवाइड कर रहा था, दे आर नॉट गिविंग. द प्राइवेटाइजेशन हैज अल्टीमेटली, आज एयर इंडिया के लोग जो है चिंतित है, वो बोले कि हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम है, हमारे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंडामेंटल हमारे इफेक्टेड हो, बेसिक लाइफ फैसिलिटी है, उस हाउसिंग पे इफेक्ट हो रहा है, मेडिकल पे इफेक्ट हो रहा है, वो फैसिलिटीज धीरे 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 बाहर हो रहा है. वी आर आउट ऑफ इट. जो रिटायर्ड बेनिफिट्स, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, एयर इंडिया के जो अर्लियर था कि रिटायर्ड स्टाफ जब रिटायर हो 25-30 साल के सर्विस के बाद उनको फुल मेडिकल बेनिफिट्स एयर इंडिया के माध्यम से मिलता था. एंड दैट इज सर एसेंशियल कि बूढ़े हो इतने साल सर्विस होने के बाद कहां जाएंगे ये लोग. तो ये फुल फैसिलिटीज मिल रहा था. अब देखो कि रिटायर्ड स्टाफ को पूरे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है. अब ये एज में जब उनका कोई इनकम नहीं है, ये चाहिए, अब अचानक प्राइवेटाइजेशन के बाद पेंशन बंद हो गई, ये बंद करोगे तो क्या करेगा, ये लोग मर जाएंगे. मुझे ये डर लग रहा है कि जो गरीब लोग, डाउन ट्रॉडन लोग अडानी ये जो हॉस्पिटल ESIC में जाते थे, दैट इज फॉर द वर्कमैन. आप प्राइवेटाइजेशन के बाद इनका क्या हालत हो रहा है, बिकॉज एक के बाद एक जो प्राइवेटाइजेशन लेके जा रहा है, people are suffering. You need to have a guarantee, a strong cast iron guarantee from the people who are buying these institutions that the poor workman will not suffer. राजेश जी, इसका बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को हाईलाइट करें कि लोग सफर नहीं हुए. वो कैसे इंश्योर करोगे आप? हम तो आवाज नहीं आ रही आपकी जी. अभी आवाज आ रही है सर. हम तो इसका पूरा ताकत से विरोध करने वाले हैं जी. फिर आवाज नहीं आ रही. हाँ जी हम जी. इसका पूरा
हम इसका पूरा ताकत से विरोध करने वाले हैं। पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सड़क पे जो संभव होगा हम अपना आगे का आंदोलन तय करने वाले हैं, और ये एट एनी कॉस्ट ये एसिक हॉस्पिटल कामगारों का अस्पताल ही रहेगा, ऐसा हम करेंगे। और अगर गलती उन्होंने किया तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो कि उनकी सोच के बाहर होगा। ये आंदोलन इस अस्पताल को बचाएगा और अडानी को भगाएगा। राइट, वी हर्ड इट ऑल नाउ, वी हर्ड इट ऑल। लेकिन राजेश शर्मा जी, वी विल ऑफ कोर्स कीप एट दिस। हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, इस पर हम आगे भी चलने वाले हैं। But sir, तकरीबन every week we'll do it. No, but just one second. Yes. What Rajesh Sharma ji said and what you said just now. Yes, sir. By the way, applies even to the armed forces. Exactly. Armed forces के जितने हॉस्पिटल थे, आज की तारीख में उनको ECIS कार्ड दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, अपना खर्चा कीजिए और उसके बाद जाकर के हम आपको वापस पेमेंट करेंगे। To armed forces, ex-servicemen. Now that is terrible. प्रदीप जी, नहीं, ये एक चिंता का विषय है। और दो चीज है, सरकार को, राजेश जी, सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, वर्कमैन के लिए अच्छा फैसिलिटीज हो। जैसे ये पर्टिकुलर एसआईसी हॉस्पिटल्स है, वर्कमैन को ढंग से केटर करे। हमने देखा कि ऑन द कोर्स ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यहां पर हर सरकार थोड़ा कमी बरत ली है। दे हैव फेल्ड इन फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन क्लास जो हम देख रहे हैं। बट will privatization change anything? Privatization आज के तारीख में जब आर्म फोर्सेस के बात किए, प्राइवेट कंपनीज एयर इंडिया उसके बात किए, we are seeing that workmen has suffered more after you have privatized. They believe that वो पहले जो सरकार के चलता हुआ स्कीम में एटलीस्ट काम तो हो रहा था। आप आज मुनाफे की बात कर रहे हो, you're talking about 5,000 crores of income being windfall gains to one particular private player like Adani. Or how are you going to oppose it? Workmen are losing either way. एक चिंता का विषय है, इस चीज को कैसे सुधारेंगे? There seems to be no formula. राजेश जी, नहीं, इसमें आंदोलन, जन आंदोलन से ही इसको रोका जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से दिल्ली तक ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और इस लड़ाई के अंदर हमारी जीत होगी। क्यों कि जो उन्होंने MIDC ने जमीन जो दिया था कामगार महामंडल को, वो हॉस्पिटल में दिया था। अब वो हॉस्पिटल से वहां पे कोई हेल्थ एक्टिविटी नहीं कर सकते अगर उनके हाथ पे गया तो। और वो हेल्थ एक्टिविटीज जब चालू होगा अडानी का, तो कोई काम का तो एंट्री भी नहीं कर पाएगा। अंबानी हिंदुजा हॉस्पिटल में कोई जा पाता है? नहीं जा पाता है। तो वैसे यहाँ पे ये स्थिति हम होने नहीं देंगे। और हमको पता है कि जमीन पे इनकी नजर है, इनको कोई अस्पताल आगे चलाना नहीं, इनकी जमीन पे नजर है। तो ये इनका नजर जो अपने आप खत्म हो जाएगा। और हमको विश्वास है, हमारे जो लोग हैं और जो कामगार, ये कोई 1-2 नहीं, 45 लाख कामगार है महाराष्ट्र, ये मुंबई में, जो कि यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पे इनको बहुत तकलीफ होगी और जो इन्होंने किया, लेकिन यहाँ हाथ नहीं लगा पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। राजेश शर्मा जी, कहने का मतलब ये हुआ, मुझे जो नजर आ रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि सबसे पहला कदम इसमें ये होना चाहिए कि ESIC हॉस्पिटल जो है मरोल में, MIDC में, अंधेरी ईस्ट में, उसको सबसे पहले एक बार फिर शुरू करना चाहिए। इट हैज टू बी ओपन्ड अगेन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि इसको बंद रखना, मेरी समझ में जो कुछ आंकड़े आपने दिए हैं उससे तो ये लगता है बिल्कुल गैर कानूनी है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो वो आप कैसे इंश्योर करेंगे सर? वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से इस अस्पताल को एक बार फिर शुरू किया जाए? नहीं, हमारी जो लड़ाई है इस हॉस्पिटल को शुरू करना और गवर्नमेंट के थ्रू शुरू करना, केंद्र सरकार के जो व्यवस्था है उसके थ्रू शुरू करना। हमने पहले कि सभी कर्मचारियों को आप वापस पहले यहाँ बुलाइए, 750 स्टाफ को यहाँ वापस बुलाइए, 250 डॉक्टर है सबको यहाँ बुलाइए, एक। और दूसरा, हॉस्पिटल को आप चालू करिए, क्योंकि आप 5,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों के खीसे से लेते हैं। कोई पैसे की भी कमी नहीं है, साधन की भी नहीं, संसाधन की भी कमी नहीं, खाली कमी है ट्रीटमेंट की जो आप नहीं कर रहे, वो चालू करिए। हमने दिल्ली में कुमार केतकर जो अपने राज्यसभा के मेंबर है, वो भी ये महीने के लास्ट में हाउस में, रजनी पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आज शायद भूपेंद्र यादव मिनिस्टर को मिलकर वो भी कुछ कर रही थी। और हमारे नीरज डांगी राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, वो लेबर और स्किल कमेटी के मेंबर है, वो आज मेहताब करके उसके चेयरमैन है, आज उनसे मिलने वाले थे। और उसके लिए हम लोग ने ये बोला कि पहले एट एनी कॉस्ट ये 500 बेड से जो भी करना पहले चालू करो, 50। Absolutely wonderful. That's right. That is the first step. That should be the first step.
हम लोग उसमें सफल होंगे। क्यों? कि इनकी जो मनमानी थी वो मनमानी अपने आप रुकेगी, अपने आप। राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आपको साधुवाद, और आपको और भी ज्यादा शक्ति दे, ऊपर वाला आपको और भी शक्ति दे। आपकी शक्ति जो है वो जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो इस अस्पताल से जुड़े हैं, जिनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती थी, वो लोग आपसे जुड़े रहें इसी प्रकार, वही लोग आपको शक्ति देंगे। हम तो आपके साथ ही हैं, एंड वी वुड लाइक द गवर्नमेंट टू स्टार्ट द ESICS hospital once again as soon as possible. After all, you've spent 300 crores, 250 plus 50 crores. What are you doing? Privatization without accountability And is going to destroy our and I promise basic you, structure. we will not let this go. We are not going to let this go. We'll be back on this subject again. राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नमस्कार और वंदे मातरम। Thank you so much, sir. Thank you very much. राजेश शर्मा जी नेतृत्व करते हुए इस आंदोलन का कि किसी भी तरीके से इस अस्पताल को एक बार फिर शुरू किया जाए। याद रखें, ये एम्प्लॉइज का अस्पताल है यार, जो लोअर क्लास के एम्प्लॉय होते हैं बेचारे, उनके लिए अस्पताल ही बनाया गया है सर। एवरीवेयर। और प्रदीप जी 300 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं, 300 करोड़, और उसके बाद भी हॉस्पिटल बंद है। सर, these are working people. Now after privatization, जो सीनियर स्टाफ है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके क्या हालत है? It is only if you see it and when you mix around with them, you know, even the others, there's no hope. I mean, there's no hope for them. Even the others, आशा था कि मेडिकल हमारा टेक केयर होगा, हमारा मेडिकल हमारे फैमिली का। अरे कांदिवली कौन जाएगा भाई? अब कैसे जाएगा अभी कांदिवली? अब लोग तकलीफ में आएंगे तो where will the old people go? The government has to be pro senior citizens, take care of our age old people, जो elderly people है, उनको साथ में लेकर चलना। Not only elderly people, but even the people who are working. They are not getting a very big salary. Of course. किसी की सैलरी को 1.5 लाख 2 लाख रुपए नहीं है भाई। ये भी अगर कोई 10,000 15,000 20,000 25,000 रुपए बेचारे काम करते हैं। बिल्कुल। और अगर सरकारी नौकरी में भी इन लोगों को अगर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो बेचारे कहां जाएंगे? Now that's terrible, and we are going to continue with this. Remember that. And now we come to another subject. आज मुंबई के ऊपर ही है सब कुछ। मुंबई शहर है हमारा शहर, हम लोगों का शहर है, प्रदीप जी और मेरा शहर है। याद रख लीजिए, मुंबई में अगर कुछ भी होता है तो हम उसको आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और उसका क्या समाधान होना चाहिए वो भी रखने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कांजूरमार्ग लैंडफिल की। आपको याद है दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था प्रदीप जी? एग्जैक्टली, जबरदस्त डिस्कशन, बहुत बड़ा लैंडफिल है, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। अरे कांजूरमार्ग लैंडफिल जो है वो भी तकरीबन उतना ही है, और हालत खराब है वहां पे। आसपास जितने लोग रहते हैं, किसी को एस्थमा है, किसी को स्किन डिजीजेस हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को एंड एवरी काइंड ऑफ पल्मोनरी डिजीज दैट यू कैन थिंक ऑफ, all the people over there have it. Now this is a health hazard, this is a health bomb, it's a time bomb, it can go off any time. Right now with us, the one man that we admire of One Shakti, Mr. Stalin Dayanand with us, and of course our dear old friend, environment activist, Mr. Nandakumar Pawar also with us. Stalin Saab, namaskar. Namaskar Stalin Saab. Is Nandakumar Pawar Saab also there with us? Nandakumar ji, आपको आवाज आ रही है? I don't think he's there with us at the moment. We've got Stalin Dayanand Saab with us. Stalin Dayanand Saab, could you tell us what should be done? Both Pradeep ji and I are here in the studio. Could you tell us what should be done with this Kanjurmarg landfill? This is like an environmental time bomb. It could cause a huge health epidemic that could engulf the entire city of Mumbai, and we'll be powerless to stop it. Sir. The Kanjurmarg dumping ground is a classic example of an environmental fraud being played out on people. Environmental fraud, right. It's a fraud. It's a huge health hazard. Yes. If you look up the Google Earth, the maps, it will tell you scientific landfill, and they go on telling everyone, including the High Court, the Supreme Court, that what we are doing is rocket science. Nothing can be better than this. Even if one judge visits that dumping ground, he will shut it down at that moment. And these people have used the judicial system, so the dealers in the system, to help continue this fraud. We have been fighting this for the last 12 years, and still today. In fact, the Honorable Supreme Court ordered that in 2018 that this matter should be heard on urgency. But you won't believe it.
spite of our best efforts, the court has still not found time to hear it. Now that is the state of affairs in the judicial delays. We can't blame the court also, there are so many cases. But the fact will always remain that people are being fooled that this is a scientific dumping ground. You ask them permission to go there. Let them take students, scientists and show them what they are doing. Nothing. I have been there. I have seen it in myself. What do they mean by scientific dumping ground? Hold it a minute. This is a term which is kind of new to me. What does that mean, sir? Yes. So what they are saying is that this is a very scientific technology. You know what is their technology? You just leave the garbage in the open, keep it wet, it will decompose and everything will become fine. And in that garbage, everything is mixed. You have degradable waste, non-degradable waste, you have scientific, medical waste, all kinds of dirt and filth is there in the open. In the evening, if you come to Kanjurmarg dumping ground, I promise you I'll show you 1 lakh scavenging birds. 1 lakh at least, if not more. It is that bad. The stench is so bad that up to 2 to 3 kilometers around it, even across the creek, people can't breathe. It's that bad. And whenever we complain for 2 days, things are okay. Third day again they start. See, what they are telling is that we will leave the garbage in the open and we will call it what? It's called a bioreactor. Now, what is a bioreactor? If you leave the garbage in your house also outside and keep it wet, that is also a bioreactor. Now, to actually fool the people, you know what they have done? If you look at the satellite image, you'll find a dome-like structure there. Yes. That dome structure is an office. People will think it is some kind of nuclear facility or some kind of atomic reactor. It is a complete fraud, I'm telling you. It's a complete fraud. They have given an affidavit in the Honorable National Environment Appellate Authority way back in 2009, saying that we will do everything in closed shed. It will be, segregation will be done. There will be no odor, no nuisance, nothing. But you come and see. For 12 long years, they have destroyed mangroves, they have destroyed wetlands, and they have broken every law in the book. I let this show be shown to them, and if they have any contest, I am ready to debate with them one-on-one on this. But they will never engage. And I promise you, you call any municipal officer on a TV show, he will not come as far as the Kanjurmarg dumping ground goes, because they know that what they are doing is just simply horrendous. It is the worst. It is the worst site you can have. It's a huge health hazard, and people are paying the price for it. So what you have described, Stalin Saab, it's a time bomb. It's a time waiting bomb to explode. You have a garbage dump right in the center of the city, and it's going on. Now, you've been fighting this battle from decades. Even today, the people who are commuting in the central railway say they can have the stink in the trains when they're commuting. And what about the people who are in the adjoining residential areas there complain that we can't stay? The stink is so bad. 50,000 crores budget of this Mumbai city, and we don't have a proper plan. You have a judiciary that doesn't find it so urgent, with the Prime Minister talking about saving the environment. He's talking about protection of the ecology, saying we need to remove the carbon footprints. All these things are happening, and then Mumbai, the financial capital, is suffering. What is the solution? What do you see? What is going to happen? Every time the court should intervene? See, here is a classic case where, you go look at Mumbai Mahanagar Palika's, the MCGM's track record. They have never bothered. They are always considered themselves as being above the law. Whether it is any construction illegal or any activity that they do illegally, they have never been held accountable. That is the problem. There is too much power vested in that organization, and it has full political backing of whoever is in power. So this is a case where this site, let me tell you, this is a Ramsar site. What's a Ramsar site? It's a site, wetland of international importance. Yes. We are showing the world that we have a Ramsar site in the city, and inside that Ramsar site, inside a sanctuary, India's biggest garbage landfill is situated. What can be more shameful? It's terrible. People are suffering, the environment is suffering, and the contractors are making money by the millions. And so are the BMC officers. Yeah, definitely. We don't have to, but it is more than evident. If you come, I am requesting you, take a camera, tell the so-called engineers of municipal corporation that we want to show people how scientific your landfill is. They won't allow you inside the gates. Forget, let alone take a camera inside. It is guarded like a nuclear facility. You can't believe it. So guarded like a nuclear facility with over, as Stalin Dayanand Saab says, over 1 lakh carrion scavenger birds circling around it. 1 lakh से ज़्यादा चील, गिद्ध, कौवे वहाँ पर.
Now this is terrible, and this is right in the heart of the city. So which means, what have you got? You've got a time bomb. I think we've got Mr. Nand Kumar Pawar also with us. Nand Kumar ji, namaskar. नमस्कार सर। नंद कुमार जी, अभी कांजूरमार्ग लैंडफिल साइट के बारे में स्टालिन दयानंद साहब बात कर रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ कि मुंबई के बीचों बीच आपने एक हेल्थ टाइम बॉम्ब रखा हुआ है पर्यावरण को लेकर के, जो पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट अभी भी कर रहा है और आगे जाकर के क्या करेगा कुछ मालूम नहीं है। सर बताएं कुछ, क्या किया जाए इसके बारे में? सर बोलिए। सर अभी तो स्टालिन सर ने जो बताया जी, वो मतलब दिल की भड़ास थी, क्योंकि जो वायलेशन, जो भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम जी, वो तो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि हम तो लोकल है। हम तो लोकल होने के बावजूद हम फिशरमैन भी है। जैसे कि हमने 2009 में पिटिशन दायर किया था जी, 2009 में, लेकिन हालांकि डिसमिस हुआ जी, 2009 में डिस्पोज ऑफ हुआ जी, ये कह के कि आपका जो ऑब्जेक्शन है, हमने कहा कि इसकी बदबू आएगी। तो बेसिकली any dumping ground or municipal solid waste facility cannot be set up into CRZ area, into the wetland area, into the mangrove area. So this is basically violation they have committed. Right. And it should be away from the habitation cluster. Yes. At least 10 kilometers away from the habitation cluster. Right. What is the situation on the ground? The Kanjurmarg itself has hardly 200 meters away from their facility. Yes. So this is not done. 200 meters. We are the human beings. Yeah. And apart from that, the fishing community is facing the challenges, okay, and have to pay heavy price for that, because the entire Thane Creek has been contaminated badly. Yes. And this is not baseless argument, because we have taken water samples and tested in the library, and the report have been come out confirming the level of pollution present in the Thane Creek. Yes. That is not done. Yes. So why we are supposed to go to the court every time? That's right. BMC is supposed to be the richest corporation in India. What they are doing? Correct. Huge funds. Why the funds are not being utilized for the good health of the local people and the health of the Thane Creek and the biodiversity? And not only that, not only that, not only the Thane Creek. What I have been told, any of you can take up this question. We have both Stalin Dayanand Sahab and Nand Kumar Pawar Sahab, two gentlemen I really and truly admire, both of whom have dedicated their entire lives to making our lives better in Mumbai. Thank you for that, gentlemen. I need to know, I have been told that even the subsoil has been completely and totally contaminated with toxic waste. Is that true? Definitely. See, Very much true, sir. Whatever liquid is oozing out of that entire garbage mountain, if you look, it's become a mountain now. Yes. And the entire thing oozes out into tanks which are conveniently located near the creek. Yes. Everything is sent out. And the groundwater, before MCGM started their work, was of drinking water quality. Today you analyze it, it has heavy metals in it, it has poison in it. So the subsoil and the groundwater both are severely contaminated. And, and what is sad is that humans, we have the option of going and drinking distillery or covering our noses. What do the animals in the sanctuary do? Yes. Where do they go? What are we doing to them? Yes. Doesn't the corporation have the responsibility? Now people, if you see in 2002 I remember, municipal corporation had put out an advertisement in the newspaper saying that people have to segregate their waste or they will be penalized or will not collect the waste. Yes, yes. That they have to start right away. Every household where they collect the waste, if it is not segregated, you slap a notice or a 500 rupee fine on that door and make sure that the cops come and take that person. I'm telling you, it will stop. Somewhere they have to start. People do not understand the gravity of the situation. And even if people are segregate and give the waste to the corporation, they take it mixed in the trucks and they dump it together at Kanjurmarg. Right. So the corporation is fundamentally responsible for this. I mean, what Dan says is perfectly right. Even the garbage coming out of the societies are later on mixed in the same garbage van, and it is transported to the garbage. No, but Pradeep ji, what he said was far more dangerous. Yes. Nand Kumar Pawar ji, कहने का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में कहा जाता है आप अपने गार्बेज को सेग्रीगेट कीजिए। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, आप रहते होंगे, स्टालिन साहब रहते हैं, प्रदीप जी रहते हैं, हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। फिर ये जाता है कांजूरमार्ग और कांजूरमार्ग में इट इज मिक्स्ड अगेन। तो सेग्रीगेशन का क्या मतलब हुआ, नंद कुमार पवार जी? सर यही आलम है कि ये बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक डंपिंग ग्राउंड। That is so scientific.
Wow, wonderful. Scientific about. They deserve the Nobel Prize. Right. Yeah, and we often stop from going inside the dumping ground. We don't know what is lying, whether this is diamond mining or the gold mining or a nuclear facility, as California said. We have already been stopped. I always try to go from the back door. Yes. I shared some photographs with you. That was just backyard of the Kanjurmarg dumping ground. Yes. The entire area has been contaminated so badly, you will never come across any living organism present in that particular stage. Right, now I ask you, so bad. Nandakumar Pawar ji and Stalin Dayanand Saab, I'm going to ask you a very specific question. Suppose, somehow or the other, we are able to get rid of this landfill. Ye Kanjurmarg ki jo landfill hai, suppose, hypothetically, we will not be able to, of course, but we will try very, very hard. All of you, with us, with the entire city of Mumbai. Stalin Dayanand Saab, अगर मान लीजिए ये कंजूरमार्ग लैंडफिल यहां से हट जाए तो लैंड को और थाने क्रीक को रिकवर करने में कितने साल लगेंगे सर? स्टालिन साहब, कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे. कम से कम 10 साल लग जाएंगे. यू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक सर. 10 साल तब लगेगा जब आप उसको 100% साइंटिफिक सुपरविजन में उसको मेहनत करके उसमें इन्वेस्ट करके रिकवर कराने की कोशिश करोगे तो. लेकिन इसको होगा नहीं. आप कोई भी डंपिंग ग्राउंड लीजिए, देवनार लीजिए, गोराई लीजिए, मुलुंड लीजिए, जो बंद हो गया है, वहाँ कुछ नहीं होता. वो नाम के लिए एक प्रोसेस होता है कि बायो माइनिंग बोलते हैं. उसमें क्या करते हैं, जो डिकम्पोज नहीं हुआ उसको निकाल देते हैं. बाकी वहाँ पे कुछ नहीं होता. और यही आलम पूरा शहर के सारे डंपिंग ग्राउंड के. तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट इजीली. एंड द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है. यानी करीब करीब आप 50-100 साल की मेहनत करो तो शायद नहीं हो जाता. ये कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो है उसको प्यूरिफाई करने में, एक बार फिर उसको पवित्र करने में, निर्मल करने में आपको मिनिमम से मिनिमम कम से कम 50 से 100 साल लगेंगे. नंद कुमार पवार जी, आप बताएं आखिरकार इसमें करना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी डू? सॉल्यूशन क्या है इसका सर, ये बताएं. सर अभी जैसे कि स्टालिन सर ने कहा कि 10 साल तो लगेंगे रिकवर करने के लिए. मैं बोलता हूँ कि काफी साल लगेंगे इसको. मेरे ख्याल से 10-20 साल भी रिकवर होगा कि नहीं, नोबडी कैन गारंटी जी. तो क्योंकि जिस तरह का लीचेड जमीन में जाता है निरंतर, तो हम तो जानते हैं कि थाने क्रीक वन ऑफ द प्रॉस्परस फिशिंग एरिया अर्लियर. अभी आप देखोगे तो इतना टॉक्सिक अंदर फैला हुआ है कि आजू बाजू में मच्छियां आने को राजी नहीं है. आती नहीं कोई, इतना बास आता है, बदबू आती है. इधर आप पैर डालोगे अंदर तो ऐसे बुलबुले आते हैं बाहर पानी में से, और पैर को पूरी सूजन सी आती है, रैशेस आती है पैर को. इतना केमिकल भरा हुआ है हर पानी में. नॉट ओनली थाने क्रीक बट एंटायर वाटर बॉडीज अलोंग द थाने क्रीक area, the wetlands and the mangrove area has been contaminated so badly. There is no possibility that this area can be restored in at least 20-30 years. That's terrible. That is terrible. So gentlemen, what are we looking at? We are looking at a catastrophe beyond human control. Stalin Dayanand Saab, Nand Kumar Pawar Sir, I would like to ask... No, hang on a minute. Yes, I just need to ask a question. Yes, sir. मतलब मुंबई शहर, हमारा शहर, मुंबा देवी का शहर, माउंट सेंट मेरी का शहर, हाजी अली का शहर, बाबा मखदूम शाह का शहर, कहने का मतलब ये हुआ इसको हम लोगों ने जहरीले ड्रेन बना दिए. मतलब हमारे जो रिवर्स थे, हमारी जो नदियां थी, उनके हमने नाले बना दिए, जहरीले नाले. और हमारे जो माउंटेन्स हैं, हमारी जो क्रीक्स हैं, हमारा जो ओशन है, उसको हमने बिल्कुल इतना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया कि अब वो भी जहरीला हो गया है. तो आखिर में स्टालिन साहब, मुंबई शहर का भविष्य क्या है, बताएं सर. देखिए, आपने जो बात बोली कि प्रदूषण का, आपको मालूम होगा, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि मीथेन जो होता है ये डंपिंग ग्राउंड से निकलता है. मीथेन वो गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है. और मुंबई का जो ग्लोबल वार्मिंग में या फिर जो एटमॉस्फेयर में इतना मीथेन निकलता है कंज्यूमर डंपिंग ग्राउंड से कि आप हैरान हो जाओगे. अभी बीच में एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने स्टडी किया था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्लाउड दिखा था मीथेन का डंपिंग ग्राउंड के ऊपर. तो वो ऑफिशियली आइडेंटिफाई करके बता नहीं रहे, लेकिन हमें मालूम है क्योंकि हम बगल में रहते हैं, उसकी बदबू हम रोज ले रहे हैं. तो हमें पता है कि मीथेन का एमिशन सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स इन द एयर टुडे इज फ्रॉम द कंज्यूमर डंपिंग ग्राउंड. And just for our viewers, what Stalin Dayanand Saab has said, this is for the information of our viewers, CH4 or methane is also one of the main causes
for causing a hole in the ozone layer. Now, we are looking at a real disaster. Pradeep, you wanted to say something? No, we actually need total solutions for this garbage problem of Mumbai, because Mumbai as a city, heavily populated, densely populated, every day lakhs of tons of garbage, and what is the government doing about it? And second thing, both Dayananji and Nandakumarji, what are your prayers in the court, and what is the court's answer till now? Any interim relief or kind of thing? What are prayers in the court? No? ये इसका स्टोरी बहुत बड़ा है, इसका एक्चुअली आपको एपिसोड चलाना पड़ेगा. इट इज नथिंग लेस देन ए नेटफ्लिक्स थ्रिलर. इन्होंने इतना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने ये फ्रॉड प्ले किया है. पहले तो जाके सुप्रीम कोर्ट में बोला इन्होंने कि पूरा जगह है ही नहीं बम्बई में, ये जगह बहुत बेस्ट है और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, सब कुछ ओके है. तो उस गारंटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कर लो. और फिर क्या हुआ, जब हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसका कॉग्निजेंस लिया कि यहाँ गलत हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको परमिशन दिया है, आप कैसे रोक रहे हो. तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को मिस इन्फॉर्म करके एक ऑर्डर निकाल करके उसका दुरुपयोग गया 12 साल से कर रहे हैं. लेकिन हम भी उसमें लगे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसको हिसाब देना पड़ेगा और इसको इसका एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन दे विल हैव टू पे. हम कोशिश पूरा कर रहे हैं और करेंगे आगे भी. तो कहने का मतलब ये हुआ, स्टालिन साहब, कहने का मतलब ये हुआ that the BMC and the government of Maharashtra committed perjury in the Supreme Court. Is that what you're saying? Yes, I am saying it on record, and you can give this to the BMC officials, and I dare them to take it on that they have not committed perjury. Sir, the BMC sometimes is always doing something like this. Even we had this problem where we tried to save the Kalina Talao. The BMC was foot and mouth against, totally against the residents' movement. They went to the High Court, they went to the Supreme Court against the residents' request that the original Talao to be please recreated, wo Talao humko wapas chahiye. And only after the deluge that took place, they had started thinking in their own different lines, and then it was accepted as self-evident. No, but 10 saal jo 12 saal ye sangharsh mein chal raha hai, where the BMC foolishly goes to the courts and opposes any kind of reforms where environment is concerned, is very, very a sorry figure, So we don't know Pradeep where ji, we're going to match it up. प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि आप ही के पैसे आपके खिलाफ. आप ही के खिलाफ. Yes, हमारे कहने का मतलब ये हुआ. नंद कुमार जी, आपको शायद पता ना हो कि MCGM के जो लॉयर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहते हैं, या फिर उनके जो सीनियर काउंसिल थे, वो 10 लाख रुपए से ज्यादा लेते हैं पर अपीयरेंस. 10 lakh rupees per appearance. पर अपीयरेंस. And it's going from our pockets. करोड़ों रुपए लॉयर्स को दिए जाते हैं. And it is going from the pockets of Mumbaikars. बिल्कुल. नंद कुमार पवार जी, one final word to you, sir. बताएं आगे क्या? सर, ये आगे तो बीएमसी का यही रुतबा रहा है, ये भी यही मोडस ऑपरेंडी रहा है जी, कि दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, दे नेवर थिंक अबाउट एनवायरनमेंट. कुछ भी कहीं भी कर लो. जैसे कि कांजूर डंपिंग के बारे में उन्होंने जब सुप्रीम में कहा कि दिस इज मोस्ट सुटेबल लैंड इन मुंबई, yes, नॉट फॉलिंग इनटू सीआर ग्रेड, सम पोर्शन ऑल्दो फॉलिंग इनटू सीआर ग्रेड. हम तो लोकल मछुआरे यहाँ के जी, तो एंटायर area that is 144.77 hectares for 5.25 square kilometer of area in ecological highly sensitive area, complete mangroves and CR1 status area. तो झूठ बोल के ये सब करवाया गया है. हमने शुरू में जब इसका ओपनिंग हो रहा था, कई गाड़ी आई थी, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा करके. 15-20 गाड़ी आई थी इनॉग्रेशन करने के लिए, भूमि पूजा के लिए. हमने उनको रोका कि ये क्या हो रहा है इधर. तो धीरे धीरे सब गाड़ियां निकल गई. किसी ऑफिसर ने हमको ये नहीं कहा कि यहाँ पे क्या होना है. तो इस तरह से चोरी छुपे ये किया गया है और इसका नतीजा, इसका खामियाजा इम्पैक्ट हमारे कम्युनिटी पे हो रहा है. क्योंकि सर पूरी मुंबई शहर पे हो रहा है, सिर्फ आप पे ही नहीं हो रहा है. हाँ जी, हाँ. not only Mumbai but the whole of Maharashtra, sir. As a resident, This is not going to remain right here because the environment. And as a fisherman, you have lost livelihood, sir. Yes, This is not only health-related issues. is related to livelihood. Sir, I want to know, Stalin, Dayanandi, Nandakumar ji, कोई interim relief हो सकता है क्या? Where smell is concerned, because रोज के रोज इतने tweet हो रहा है, इतने messages आ रहा है, इतने WhatsApp circulation में कि we can't bear the smell. It's horrible. The central suburbs, traveling by train, moving around in central suburbs,
You are getting the smell of this. This is bad for health. That's methane. Methane. You're getting a rotten. any interim suggestion or relief कुछ possible है इसमें लोगों को कहने के लिए? सर अभी एक बात मैं और बोलूंगा यहाँ पर से बदतर होते रहेंगी, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स ने भी कोशिश किया कि उसमें इंटरव्यू करके उन्होंने कहा कि हमें बदबू आ रही है और तकलीफ हो रहा है, लेकिन अदालतों ने अभी तक उस बात पे गौर नहीं किया है। और हमारा सिस्टम इतना स्लो है, आपको शायद पता हो ना हो, जो PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो दिन में मेरे ख्याल से हफ्ते में 7 दिन सुनने चाहिए, हफ्ते में एक बार सुना जाता है, और कितने PIL से और कितने लोगों की सुनवाई होती है। यानी जो जुडिशियल डिले है उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया, एंड दे आर मेकिंग मनी फॉर मिसमैनेजिंग वेस्ट, नॉट फॉर मैनेजिंग वेस्ट। ये फर्क है। ये जो कर रहे हैं यानी गलत करने का पैसा ले रहे हैं मुंबई के लोगों से। Right, Pradeep ji, this is an uphill task. This is very tough. This is And going to be people very are going tough. to suffer. People are suffering. Not just people are suffering, sir. This is a time bomb. Yes. This is a recipe not just for disaster, for a catastrophe. It will engulf the entire Mumbai. Sir, all the rivers are poisoned, all the water bodies, all the lakes, all the creeks, the wells. And now underground water. Yes, sir. And even the land that is poisoned. When that happens, it will be a catastrophe of biblical proportions, let me tell you that. Because it says so in all the books, not just in the Bible. It says so even in the Puranas. It says so even in the Holy Quran. When the rivers of a city become poisoned, you are living on a city of poison. You cannot progress. You are going to die. Let me tell you this, for all your air conditioning, for all your Finesta windows, you are keeping the foul air out, but one day that foul air is going to come in because you'll have to breathe it whether you like it or not. Talan Dayanan Sahab, Nand Kumar Pawar Sahab, really proud of both of you and the work you're doing. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों को साधुवाद। हम गर्वान्वित हैं जो काम आप कर रहे हैं उसको लेकर के। We really feel proud that Mumbai has citizens like you. Thank you so much, gentlemen. Thank you very much. Thank you, sir. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. We wanted to talk about the Mahim Church as well, but I think our friend Mr. Nicholas Almeida is on the highway and we are not able to connect to him. I think we'll connect to him tomorrow. फिलहाल के लिए मुंबई शहर से I'm so sorry to say we don't have any good news. आज कोई खास अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब बटन के ऊपर प्लीज़ क्लिक करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आप देखते रहें Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. Vande Mataram.